Okay, students, again, Assalamu alaikum. Today, in the last class, we have done some worksheets of coordinate geometry. We have done the worksheet. We have done worksheet number 10 of coordinate geometry and 9 of coordinate geometry. This and 10. And there are some in these. So, anyone wants to ask the confusion? Ask. Yes, it's a problem. यस बच्चों, जिसे प्रॉब्लम है वो पूछ रहे अभी. जिसे प्रॉब्लम कुछ मैसेजेस भी आए थे मेरे पास प्रॉब्लम वाले कि सर ये क्वेश्चन इनमें प्रॉब्लम है. ओके, मैसेज आ गया. क्वेश्चन नंबर 7 वर्कशीट 11. क्वेश्चन नंबर 7 वर्कशीट 11. चलिए करते हैं. What is in this question number 7? Oh, I'm not doing this question number 7. I am doing question number 6. 6 and 7 both are same. So I'm doing question number 6. Now, here is the question. A straight line L of positive gradient passes through the point 2, 5 and makes an angle of 45 with the horizontal. Find the equation of line. So now, the line passes through 2 and 5. So let's say 2 is here and 5 is here. The line passes through 2 and 5 and we need to
calculate the equation of this line. Now, for example, here is 2 and 5. Here is 2 and 5. यहाँ से लाइन पास कर रही with the angle 45 to horizontal. We have to calculate its equation. So coordinate of the line is 2 and 5. We only have the coordinates of this line. हमारे पास इस लाइन के सिर्फ कोऑर्डिनेट मौजूद हैं और वो भी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट. We don't have the gradient of this line. We don't have any other coordinate. यहाँ पर आकर प्रॉब्लम हो गई. अगर तो ग्रेडियंट होता हम लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते थे. अगर एक और कोऑर्डिनेट होता हम लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट से हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते और फिर लाइन की इक्वेशन निकाल लेते. But the problem here is we only have a single coordinate and we don't have the gradient of the line. अब एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पर बच्चों तीन किस्म की लाइंस होंगी हमारे पास. कितने टाइप की लाइंस होंगी हमारे पास? तीन किस्म की लाइन होंगी. जिसका ग्रेडियंट एग्जामिनर नहीं देगा. Here a line L1 parallel to x-axis, a line L2, a line L2 parallel to y-axis, a line L3 making an angle of 45 degrees. Making an angle of 45 degrees. So now, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, अगर तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो याद रखिएगा ग्रेडियंट इस लाइन का क्या होता है? 0. अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो ग्रेडियंट इस लाइन का क्या होगा? इनफाइनाइट. और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनफाइनाइट को हम लिखते हैं 1/0. और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्रीज बनाए तो याद रखिए ग्रेडियंट होगा इसका 1 और -1 +-1. कहीं पर भी कोई भी ग्रेडियंट एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता कि ग्रेडियंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो याद रखिएगा जब भी 45 डिग्रीज की लाइन एग्जामिनर देगा वो आपको बताएगा कि आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. लाइक दिस. यहाँ पर इसने कहा है पॉजिटिव ग्रेडियंट. इसका मतलब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी लाइन का ग्रेडियंट +1 हो गया. सो now we have to calculate the equation of the line by using y minus y1. y1 is 5 equals to m x minus x1. x1 is 2. So y minus 5 equals to x minus 2 and y equals to x plus 3 is the equation of line passing through 2 and 5, making an angle of 45 degrees with
द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो बस ये 3 ग्रेडियंट आपके जहन में अगर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे। होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 7 yourself. Hurry up, start working. Question number 7. 5 minutes you have. I'll start at 2:50 now. Good Laiba, Iman. Excellent, Chandni. Mariam, Bitreen.
Okay, students, now it's over for this question. And now we are moving towards the past paper. Now we are moving towards the past paper of coordinate geometry. Question number 1. Question number 1 is, the point A has coordinates we have done this question number 1 before. Question number 1 हम पहले कर चुके, पहले कर लिया हम लोगों ने question number 1. So I'm not doing this question number 1. Yesterday in the last class we have done this question number 1. So now I'm going next, and okay, question number 3. Question number 3. Now what we have to do in question number 3? Question number 3 is, find, in the first part, find an expression of B in terms of A if A and P are 2 points with gradient equals to 2. So now the first part is very simple. If the gradient is equals to 2, then y2 minus y1 over x2 minus x1 equals to 2. We have to find an expression for B. So B minus 1 equals to 2A plus 2 and B equals to 2A plus 3. This is the expression. This is the expression which is for B. Now, in the second part, what the examiner is asking, in the second part, B is a third point such that AP, the distance AP equals to the distance AB. Calculate the coordinates of the possible positions of P. We have to calculate the coordinates of P. अब आप देखिए, the distance AP, A से लेकर P तक का distance B minus 1 whole square plus A plus 1 whole square equals to the distance AB. The distance AB minus 1 minus 2 का square plus 10 plus 1 11 का square. Root and root cancel out. So B minus 1 whole square plus A plus 1 whole square equals to 4 plus 121. Now, what we have to calculate? We have to calculate the coordinates of P, means the values of A and B. Now we have to solve
हमें अब सॉल्व करना है इसको साइमल्टेनियसली। अब यहां पर हम b की वैल्यू रख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 2a + 3। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल यूज कर रहा हूं। और बेटा ये तमाम चीजें आती हैं प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये तमाम चीजें डेवलप होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। b-1 की जगह b-1 ये लिखा हुआ, b-1 की जगह मैं ये लिख रहा हूं। क्या लिखा जनाब? 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? a-1 होल स्क्वायर प्लस, sorry, here it is a+1, a+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 125। क्या किया हमने? b-1 की जगह रख दिया 2a+2, और 2a+2 भी नहीं बल्कि हमने क्या रखा? 2 कॉमन लेने के बाद a+1। मैं इस स्टेप को थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर बेटा जब भी मेरी क्लासेस लेंगे आप इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच हर चीज डिस्कस की जाएगी ताकि स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर हमने क्या किया? 2 के साथ a+1 को मल्टीप्लाई करवा दिया। हाँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके b को लिखा हुआ है। नाउ 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। a+1 होल स्क्वायर प्लस a+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 125। ये कितना हो गया जनाब? 5 a+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 125। a+1 होल स्क्वायर क्या हो गया? √125। क्या हो गया जनाब? √125। तो बल्कि √125 नहीं, 125 पहले डिवाइड किससे होगा? 5 से डिवाइड होगा। 125 डिवाइडेड बाय 5, तो रिजल्ट क्या आएगा? 25। नाउ टेक अंडर रूट, सो a+1 equals to ±5. So what is a? 5 minus 1, 4 minus 5 minus 1 minus 6. These are the two values of a. अब b की वैल्यूज अगर हम a को रखते हैं यहाँ पर 4, 4 to the 8, 9, 10, 11। 6 को रखते हैं तो 6 to the 12 माइनस में, तो -9। These are the values of a and b। इस तरीके से जनाब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था आपका, राइट ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जरा मैं अब आप लोगों को दे रहा हूं सॉल्व करने को, वो अब आप लोग जरा सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा तुम लोगों का भी दिमाग चले, हाथ चले। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे बैठे बैठे ना सुन हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको दें जरा, फिर आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। 10 मिनट्स यू हैव, 10 मिनट हैं। इट इज 2:59, लाइक 3:10 पर डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। स्टार्ट वर्किंग।
Okay, students. Yes, Chandni, have you done? Iman Fatma, have you done? बस सर थोड़ा सा रहता है। Laiba, have you done the first part? सैयद बिलाल, एरिया कैलकुलेट नहीं हो रहा। ईमान फातिमा, नहीं हो रहा। ठीक है। लाइबा, थोड़ा सा रहता है। मरियम, मरियम, सर पार्ट 2 पे हूँ मैं। सरोज, सैयद बिलाल, ठीक है। Now stop working. Now I'm doing question number 8. Now in this part 1, here is an isosceles triangle. Here is an isosceles triangle. And अभी इसमें for example, this one is a -2, चलें वो तो लिखा हुआ a, here it is b, and here it is c. अब देखिए जरा आप कि how can we calculate the exact area. अब एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट करने के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, सबसे पहले तीनों लेंथ्स कैलकुलेट की। फॉर एग्जाम्पल दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो ये दो इक्वल साइड्स हो गई। तो फिर अब हम क्या करेंगे, बी सी का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और हाइट ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे और फिर हाफ बेस इनटू हाइट करके एरिया कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन दिस वन इज अ लेंथी प्रोसेस। जब ये क्वेश्चन मैंने पिक किया ताकि जो नया प्रोसेस है हमारे पास एरिया कैलकुलेट करने का, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ। नाउ वी हैव another method, another formula, and the formula is called Hero's formula. It is called Hero's formula.
Now, in the hero's formula, how can we calculate the area directly of any shape? किसी भी शेप का एरिया अगर कैलकुलेट करना हो आप हीरोज फॉर्मूला से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला सुनिएगा, हमेशा लिखेंगे आप हाफ, स्टार्ट करना है किसी भी कोऑर्डिनेट से, मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ए के कोऑर्डिनेट्स आपने लिखे -2 -1, ए से आप चले इधर तो सी सामने आपके नजर आ रहा है 6 and -3, सी से आप मजीद आगे चले तो आपको बी नजर आया 4 and 6। अब देखिए एरिया ओपन एंडेड किसी चीज का नहीं निकलता, तो हमें इसको क्लोज करना होगा, मतलब वापस ए पर जाना होगा। वापस जब ए पर जाएंगे हम तो दोबारा से ए के कोऑर्डिनेट्स लिखना होंगे। अब एक चीज यहाँ पर जहन में रखिएगा कि अगर ट्राइंगल है तो 4 कॉलम्स बनेंगे आपके, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 5 कॉलम्स, अगर पेंटागन है तो 6 कॉलम्स। एक कॉलम ज्यादा बनेगा, और वो क्यों ज्यादा बनता है अभी आपने देखा कि जब क्लोज करते हैं तो हमें वापस उसी पॉइंट पर पहुंचना होता है जहां से हमने स्टार्ट किया था चलना। नाउ एरिया इक्वल टू हाफ। अब सॉल्व कैसे किया जाएगा जरा चेक कीजिए। अब पहले हम जाएंगे क्रॉस में इस तरह डायगनली, क्या हुआ जनाब, -2 into -3 6, 6 6 36, 4 1 4। ये जाने का हो गया रास्ता, वापसी आपने ऐसे आना है, ये स्टेप मेमोराइज करना होगा आपने, वापसी आपने ऐसे आना। तो अब आप देखिए जब वापसी आएंगे हम तो दिस वन विल बी, अच्छा जब वापस आएंगे तो साइन नेगेटिव का होगा, दिस वन विल बी -12, this one will be -12 and this one will be -6, half, ये हम चले जनाब हाफ, कितना हो गया 6 -4 2 तो 38, माइनस कितना हो गया 24 और 6 30, प्लस में क्या हुआ जनाब हाफ 68, क्या रिजल्ट आया जनाब 34 is the accurate area of this isosceles triangle. This is called Hero's formula. फिर सुन लीजिए एक बार, आपने ए से चलना स्टार्ट किया तो पहले ए के कॉलम, ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे फर्स्ट कॉलम, देन नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, देन नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और फिर क्लोज करने के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स दोबारा। फिर राइट साइड पर आप डायगनली जाएंगे, माइनस लेफ्ट साइड पर आप डायगनली आएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव में भी होता तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही रहता, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सही है ना? नाउ इन द सेकंड पार्ट, द पॉइंट डी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सेकेंड पार्ट क्या कहा गया, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। फॉर एग्जाम्पल ये ए बी की लाइन है, CD is perpendicular to AB. Let's say here it is C, D is the point on AB.
आपसे कहा गया कैलकुलेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी, हमें डी के एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, और क्या कहा गया, ये परपेंडिकुलर भी है आपस में। सबसे पहले आपने ए बी की इक्वेशन कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपने सी डी की इक्वेशन कैलकुलेट करना है। क्योंकि सी के कोऑर्डिनेट्स मौजूद है, परपेंडिकुलर से ग्रेडियंट भी आ जाएगा। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स कोऑर्डिनेट आप निकाल देंगे। सो दिस इज अबाउट द सेकंड पार्ट। अगर किसी को समझ में नहीं आई ये चीज, वो पूछ सकता है, बट होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि चीजें आपके जहन में रहें। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। Now, after this, actually I'm searching about the same question, if it is in our past paper. No, not the same question. चलें, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, ये जरा आप लोग की डू क्वेश्चन नंबर 7।
Excellent, Laiba, Mariam, Chandni. Beta, so no more for today. It's 3:27. So अभी हम जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं about the homework which you have to submit. एक काम करते हैं. First 10 questions. Total questions are only 38 questions we have in this topic. So, बच्चों, first 10 questions you have to do. Do question number 1 to question number 10. These you have to do as homework, and you don't have to upload in the Google Classroom because inshallah in the next class फिर हम मजीद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एंड बाय संडे midnight you have to upload all the questions in the Google Classroom. तो आज Google Classroom का फोल्डर मैं नहीं बना रहा हूँ. शाम तक बन जाएगा इंशाल्लाह ताला. तो संडे मिडनाइट तक आप लोगों ने ये अपलोड करना होगा ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कल आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने नहीं करने हैं और स्किप करने हैं. राइट, अभी तो खुद से ट्राई करो, दिमाग लगाओ थोड़ा. ठीक है बच्चों. सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. आज के लिए इतना काफी है. अल्लाह हाफिज.